Good morning, students. Once again, I, Farida Yasmin, welcome you all in my English class for class 9. Today, I am going to teach you the second lesson of the NCERT book, Moments. The topic of the lesson is The Adventures of Toto, written by Ruskin Bond. Ruskin Bond is one of the India's most famous and beloved authors. As a child, he loved to read. He was fond of books by authors like Charles Dickens, Charlotte Bronte, Rudyard Kipling, and so on. He wrote his first novel, The Room on the Roof, in 1956 when he was 17 years of age, and he has not stopped writing since then. So, this story, The Adventures of Toto, is the story about a pretty red monkey named Toto who was kept tied to a feeding trough. A feeding trough means manger, from where the animals used to get fed. So the monkey was kept tied to a feeding trough by a Tonga driver, and it looked so disorganized over there that the narrator's grandpa decided to buy it and add it to his private zoo, which had several animals beforehand. Now, Toto Toto's Toto had deep set eyebrows and pearly white teeth. His bright eyes always used to sparkle with mischief, and whenever he grinned, it means gave a smile, Anglo Indian ladies got frightened. Though his hands looked dry, his fingers were very fast and wicked. He used his tail as a third hand and used to hang from the branches of a tree. And whenever some dish was out of reach of his hand, he used his third hand only to reach over there. Now, Grandpa was fond of birds and animals. That's why he frequently brought them home, and Grandma always quarreled with him for this reason. So it was kept a secret that Toto had been brought. Now the narrator and his grandpa tied him to a peg in a little closet opening into the bedroom wall. Now, what is a closet? Meaning of a closet is a cupboard or wardrobe tall enough to walk into. So, grandpa and the narrator, they together tied Toto to a peg in a little closet. But after a few hours, when they returned back to see in what condition he was, they were amazed to find that Toto was not present over there. He had torn the ornamental paper which covered the walls, and the narrator's blazer, which was hanging over there, had been torn to pieces. But Grandpa was very happy with his performance. He said that if he had got time, if the monkey had got time, he would have tied the pieces of the blazer to a rope and fled away. Now, Toto's presence in the house was still kept a secret, and he was transferred to a big cage in the servant quarters, where a number of grandfather's pets lived sociably together, and the animals consisted of a tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while the narrator's pet goat.
But the monkey was so naughty that he didn't allow the other animals to sleep at night. That's why Grandpa, who had to leave for Saharanpur the next day, he decided to take the monkey along with him. They lived at Dehradun, and the grandfather had to leave for Saharanpur to collect his pension. Now, unfortunately, the narrator couldn't go along with his grandpa, and grandpa told him the story of the trip afterwards. So, a big black canvas kit bag was arranged for Toto, and straw some straw was kept at the bottom, and it became the Toto's new abode, his new home. Abode means home. And when the bag was closed, and as the bag was new and strong enough, the monkey couldn't bite it. So at the Dehradun railway platform, when the monkey tried to jump or tried to escape from the bag rolled about on the floor or occasionally jumped into the air, and a crowd of onlookers gathered at the Dehradun railway platform just to see the canvas kit bag, which often jumped into air because the monkey was inside, and as he wanted to escape, he jumped into the air, and with him the bag also jumped. Toto remained in the bag as far as Saharanpur. But when Grandpa was producing his ticket at the railway turnstile, turnstile means a mechanical gate Turnstile means a revolving door that allows one person at a time to pass through. एक लोहे का गेट होता है, कहीं कहीं आपने देखा होगा, उसे ही कहते हैं turnstile. So when the grandpa produced his ticket, Toto suddenly poked his head out of the bag and smiled at the ticket collector. The ticket collector was surprised to see him in the bag, and he used his presence of mind and told the grandpa that he had a dog with him and he will have to pay for that. Now the grandpa was a little bit annoyed because the collector had called his monkey a dog. He wanted to convince the ticket collector that it was a monkey and not a dog. But then the ticket collector asked the grandpa to pay rupees 3 as Toto's fare. And when he asked for the fare, the grandpa took out a tortoise out of his pocket and said that asked the ticket collector how much will he charge for the tortoise. But the ticket collector said that since it was not a dog, he wouldn't take any money. When Toto was accepted by the grandma, he got a place in the stable
where already the family donkey Nana lived. And on Toto's first night, grandfather went there to see if both of them were comfortable, and he was surprised to see that Nana, without any cause, was pulling a rope with which Toto had been tied, and he was trying to keep the monkey's head from the bundle of hay. Now, grandfather gave Nana a slap, and she, along with the monkey, moved back, because the monkey had taken the long ears of the donkey in his mouth. And Toto and Nana never became friends. Now, an incident of bathing has been mentioned by the narrator, that during winter season, a large bowl of warm water was given to Toto for bath, and he at first tested the temperature with his hand, then gradually stepped into the water as he had seen the narrator doing. And when he was comfortable, he used the soap on his feet and hand and rubbed himself all over. And when the water became cold, he got out of the bathing tub and ran towards the kitchen to dry himself. And if anyone laughed at him, he got hurt. His feeling got hurt, and he refused to go on a bath. And another incident has been mentioned when he was approximately boiled. Once a day, what happened? A large kitchen kettle was lying on fire, and what Toto did, he removed the lid of the he removed the lid of the kettle and found that the water was warm enough for him to take a bath. So he got inside it, and after some time, when the water became hot, he wanted to get out of the kettle, but when he moved his head out of the kettle, he found that it was very cold outside. So he got inside the kettle and sat over there. And then grandmother arrived there and took him out of the kettle, half boiled. The narrator says that his brain was especially devoted to mischief. He was very fond of tearing things to pieces. The narrator says that one of his aunts, whenever she came near him, he made a hole in her dress. Another incident has been mentioned by the narrator when a large dish of pulao was lying on the center of the dining table, and when the narrator, along with his family members, entered the room, they were amazed to see that Toto was stuffing himself with rice. And when grandmother screamed, Toto threw a plate on her. And when one of his aunts rushed forward, he threw a glass of water on her face. When grandpa arrived, Toto, along with the dish of pulao, fled away through the window. And
The whole afternoon he remained hanging from the branches of the jackfruit tree, sometimes sitting over there and eating slowly, as if he was determined to eat each and every grain of the plate. And then, when he finished eating, what did was he threw the dish from the tree, which broke into pieces, and then he chattered with delight. And the narrator says that obviously the monkey was not a type of a pet which could be kept at home for long, because he was very mischievous. And the narrator says they were not well to do and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtains, or wallpaper. So, grandfather found the Tonga driver once again and sold Toto back to him only for 3 rupees, because they could not afford such a mischievous monkey at home who did such a disaster, so much destruction. So, it is the end of the story. And now I would tell the story in Hindi. ये जो कहानी है एडवेंचर्स ऑफ टोटो, यानी टोटो जो कि एक प्यारा सा बंदर है, बेबी मंकी, उसकी कहानी है, उसके रोमांच की कहानी है। जब तक वो दादाजी के घर पे रहा उसने कितनी शैतानियां की। अब दादाजी जो हैं उन्होंने इसे खरीदा था एक टोंगा ड्राइवर, टांगा के चलाने वाले, टांगा चालक से। कितने में? 5 रुपए में। क्यों खरीदा था? क्योंकि उस टोंगा ड्राइवर ने इस लाल मंकी को फीडिंग ट्रफ, यानी फीडिंग ट्रफ कहते हैं जहाँ पे जानवर खाना खाया करते हैं, जहाँ से, अब उसमें ही उस टोंगा ड्राइवर ने इसको बांध के रखा था। दादाजी जब भी इसको देखते थे तो उनको लगता था कि वो बिल्कुल बेजगह है, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि इसको अपने प्राइवेट ज़ू में ऐड करेंगे। प्राइवेट ज़ू का मतलब उन्होंने घर पे अपने कुछ जानवर पाल रखे थे, जिनमें एक कछुआ था, एक खरगोश की जोड़ी थी, एक पालतू गिलहरी थी, और थोड़े वक्त के लिए नैरेटर की बकरी थी। तो अब जो ये बंदर है, नटखट तो है लेकिन प्यारा सा भी है। इसकी आंखें जो हैं वो घने भौं के नीचे हमेशा शैतानी से चमकती रहती हैं। दांत भी इसके बिल्कुल मोतियों जैसे सफ़ेद हैं। और जब ये एंग्लो इंडियन लेडीज़ को देख के अपने दांत दिखाया करता है, मुस्कुराया करता है, तो वो अक्सर डर जाया करती थी। लेकिन इसके हाथ जो थे ऐसे लगते थे दिखने में मानो अचार में कैसे हम लोग नमक डाल के धूप में रखते हैं वो बेरंग हो जाता है, बिल्कुल उस जैसे बेरौनक थे, लेकिन बहुत फास्ट थे और बहुत शैतानियत से भरे हुए। जब भी इन उंगलियों का इस्तेमाल करता था ये कुछ न कुछ उल्टी ही हरकत करता था। एक इसकी पूंछ थी प्यारी सी, जैसा कि दादाजी का कहना था कि पूंछ किसी की भी खूबसूरती में इजाफा करता है, इंक्रीमेंट करता है। तो उस पूंछ का इस्तेमाल ये अपने तीसरे हाथ की तरह करता था और उससे को इस्तेमाल करता था पेड़ से टंगा रहने के लिए। और कभी कभी ऐसा कोई डिश हो जो हाथ से न पहुंच पा रहा हो हाथ वहाँ, तो वहाँ पर ये अपने पूंछ का इस्तेमाल किया करता था। अब दादाजी की आदत थी कि उन्हें जानवर पसंद थे, इसलिए वो कभी भी बाहर जाते थे तो किसी भी पंछी या जानवर को घर ले आया करते थे। और दादी माँ उस वक्त में बड़ा हल्ला गुल्ला मचाया करती थी, इसलिए ऐसा निश्चय किया गया था, ऐसा डिसाइड किया गया था कि टोटो को लाया गया है, इस बात को एक राज रखा जाए, और तब तक के लिए कम से कम जब तक दादी माँ का मूड अच्छा ना हो जाए। और इसलिए इन लोगों ने उसे एक क्लोजेट का व्हाट इज़ द हिंदी टर्म आई डोंट नो, लेकिन
एक दीवार में खुली जगह थी जहाँ इन लोगों ने उसमें खूंटी लगा के और उस बंदर को बांध दिया था, और वहाँ पे ऑर्नामेंटल पेपर यानी कि डेकोरेटिव पेपर वहाँ पे लगा दिया था। और जब ये लोग वापस आए कुछ घंटों के बाद ये देखने के लिए कि बंदर का क्या हाल है, उसको ज़रा खोल देते हैं, तो वहाँ आके देखते हैं कि बंदर तो बिल्कुल गायब। पेपर वो जो था ऑर्नामेंटल वो फटा हुआ, अंदर से सीमेंट और ईंट नज़र आ रही थी क्लोजेट से, और जो खूंटी इन लोगों ने लगाई थी वो खूंटी भी निकल के अलग थी, और वहीं पे नरेटर का ब्लेजर टंगा हुआ था जिसको इसने टुकड़े टुकड़े कर दिया था। अब नरेटर को लगा कि पता नहीं दादी माँ का रिएक्शन क्या होगा, लेकिन दादाजी उसके परफॉर्मेंस से काफ़ी खुश थे। उनको लगा कि बंदर बड़ा चालाक है, और अगर उसको वक्त दिया जाता तो उसने ब्लेज़र के टुकड़ों को रस्सी बना के और वो खिड़की से भाग लिया होता। अब घर में अभी तक उसकी उपस्थिति को एक राज रखा गया था, तो इसको जो है सर्वेंट्स क्वार्टर में एक बड़े से पिंजरे में रख दिया गया बंदर को, जहाँ पहले से ही प्राइवेट जू में इनके जो दादाजी के जानवर थे, खरगोश और कछुआ और गिलहरी और नरेटर का गोट। अब ये जब वहाँ गया बंदर, तो इसने उन लोगों की नींद हराम कर दी। अब दादाजी जो उनको देहरादून छोड़ के दूसरे दिन सहारनपुर जाना था अपना पेंशन लेने के लिए। अब उन्होंने ये निश्चय किया कि बंदर को साथ ही ले जाएंगे, वरना अगर छोड़ा तो शायद वो और भी परेशानी क्रिएट करेगा। अब नरेटर किसी भी वजह से अपने दादाजी के साथ जा नहीं पाया। जब वो वापस लौटे तो उन्होंने उस ट्रिप की कहानी इसको सुनाई। अब किया क्या गया, एक बड़ा सा ब्लैक कैनवस किट बैग लिया गया बंदर के लिए। अब पिक्चर नेक्स्ट पेज पे है, जब नेक्स्ट पेज आएगा तो आप लोग देख लेना कि बैग दादाजी ने टांगा हुआ है और उसमें से वो अपना सर बाहर निकाल के झांक रहा है। तो उस कैनवस किट बैग में नीचे स्ट्रॉ बिछाया गया, नेवारी जिसको कहते हैं आप लोग, तो उसको बिछाया गया और उस पर बंदर को रख दिया गया, ऊपर से बैग बंद कर दिया गया। अब बंदर जो है वो अपनी हरकत तो छोड़ेगा नहीं, वो कभी उछलता कभी फुदकता, बाहर निकलने की कोशिश करता। अब नतीजा ये कि देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पे एक तमाशा सा बन गया। देखने वाले लोगों की एक भीड़ जमा हो गई, क्योंकि हम लोग जब भी जाते हैं तो बैग में हम लोग सामान लेके जाते हैं, लेकिन जब वहाँ पे जमा भीड़ ने देखा कि बैग उछल रहा है तो जाहिर है सारे लोगों को दे वर एंशियस टू नो व्हाट वाज गोइंग ऑन इन द बैग। अब सहारनपुर तक तो किसी तरह वो अंदर था, लेकिन जब दादाजी अपना टिकट देने लगे तो उसने बैग से अपना सर निकाला, और जब टिकट कलेक्टर की नज़र उस पर पड़ी तो वो बेचारा तो हैरत में पड़ गया। लेकिन उसने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड इस्तेमाल किया और सोचा कि दादाजी इरिटेटेड ना हो जाए। कहने का मतलब कोई भी बंदर को बैग में लेके तो जाता नहीं है। अगर वो कहता कि आपके बैग से बंदर झांक रहा है तो हो सकता है वो थोड़ा सा झिझक जाते, शर्मिंदा हो जाते। इसलिए उसने कहा कि आपके बैग में जो कुत्ता है तो उसके लिए आपको 3 रुपये देने पड़ेंगे। अब ये दादाजी जो है इनको लगा कि ये तो है बंदर और इसको ये बता रहा है कुत्ता, तो उन्होंने उसको कन्विंस करने की कोशिश की कि ये कुत्ता है, सॉरी बंदर है, ना कि कुत्ता। अब टिकट कलेक्टर जो, हाँ, और उसके बाद फिर दादाजी ने अपने पॉकेट से एक कछुआ निकाला और कहा कि अब इसका बता दो, इसके लिए क्या चार्ज करोगे। तो टिकट कलेक्टर ने उसको अच्छे से हाथ से छुआ और कहा कि नहीं, ये कुत्ता तो है नहीं, इसलिए इसका कोई भी भाड़ा नहीं लगेगा। अब ये जब घर के लोगों ने, स्पेशली ग्रैंड माँ ने उसको एक्सेप्ट कर लिया बंदर को, तो उसको स्टेबल में जगह मिल गई, घर में स्टेबल में जगह मिल गई, जहाँ यहाँ का फैमिली डोंकी नाना जिसका नाम था वो पहले से ही रहता था। और दादाजी जो अच्छे से वाकिफ़ थे, जानते थे कि इन लोग दोनों जहाँ एक साथ रहेगा तो कुछ न कुछ तो होगा। तो वो पहली रात गए वहाँ देखने के लिए कि
टोटो वहाँ कंफर्टेबल है कि नहीं। तो उन्होंने क्या देखा कि नाना जो है अपने सर को खींच रहा है। नाना अपने सर को खींच रहा था। एक स्ट्रॉ का बंडल था, उस दर से खींच रहा है। अब इनको समझ नहीं आया कि वो अपना सर को ऐसे खींच क्यों रहा है, और उन्होंने उसके पीठ पर एक चपत लगाई, और पीठ पर चप्पल लगाई तो वो पीछे की तरफ भागा। पीछे की तरफ भागा तो अकेला नहीं भागा, उसके साथ बंदर भी था। अब क्यों था बंदर? क्योंकि बंदर जो था उसने अपने मुंह में, अपने दांत में उसके कान को लिया हुआ था। किसके? डोंकी के। डोंकी के कान को अपने दांत से दबाया हुआ था, और यही वजह थी कि वो अपने सर को बार बार पीछे खींच रहा था। अब ये दोनों कभी दोस्त तो बन नहीं पाए। अब नरेटर ने एक इंसिडेंट मेंशन किया है सर्दियों के मौसम का, जब टोटो को नहाने के लिए बड़े बर्तन में पानी मिलता था। ये क्या करता था? बिल्कुल इंसानों के जैसा, या जैसे इसने नरेटर को देखा था, ये क्या करता था? पहले टेम्परेचर चेक करता था, और फिर धीरे धीरे अपना एक पैर डालता था, फिर अपना दूसरा पैर डालता था, और इस तरह से अंदर बैठ जाता था। पानी उसके गर्दन तक आ जाता था, और वो वैसे ही एक बार जब वो आराम से पानी में बैठ जाता था, फिर साबुन को लेके अपने हाथों और पैरों पे आराम से रगड़ रगड़ के नहाता था। और जब नहाने का पानी ठंडा हो जाता था तो वहाँ से निकल के वो सीधा किचन की तरफ भागता था अपने आप को सुखाने के लिए। और इस दौरान अगर कोई उसकी इस हरकत पे हंस देता था तो वो बेचारा शर्मिंदा हो जाता था, दुखी हो जाता था, और नहाने से इनकार कर देता था। अब एक बार की कहानी है जब उसने अपने आप को बिल्कुल बॉयल कर लिया था। एक बड़ा सा किचन केटल चूल्हे पे चढ़ा था चाय के लिए, और जब टोटो वहाँ आया तो उसने क्या किया, ढक्कन खोल के देखा, और ढक्कन खोल के देखने के बाद उसको लगा कि ये पानी नहाने के लिए बिल्कुल सही है। अब उसने क्या किया कि वो केतली के अंदर घुस गया, और सर अपना उसने पहले बाहर ही रखा था। अब थोड़ी देर तक तो ठीक था, लेकिन जब पानी अंदर खौलने लगा तो उसने अपने आप को थोड़ा सा बाहर और निकाला। अब बाहर निकाला तो बाहर का मौसम काफ़ी सर्द लगा उसको, और वो फिर से अंदर ही बैठ गया, और गर्म होने की वजह से अंदर में ही थोड़ी देर तक उछलता फुदकता रहा केटल के अंदर। और फिर वहाँ दादी माँ किसी तरह पहुँची, और उन्होंने उसको आधा उबला हुआ केतली से बाहर निकाला। अब नरेटर ये कहता है कि अगर कोई दिमाग का ऐसा हिस्सा होता है जो मिसचीफ यानी शैतानी को डिवोटेड हो, तो ये काफ़ी डेवलप था। कहने का मतलब कि उसका दिमाग काफ़ी शैतानी था, शैतानी दिमाग उसका काफ़ी डेवलप था, और उसको आदत थी चीज़ों को चीरने फाड़ने की। अब एक नैरेटर की जो आंट थी, वो जब उसके पास आया करती थी, क्या करता था, वो उनके कपड़े में एक छेद कर दिया करता था। अब एक इंसिडेंट का जिक्र किया है नैरेटर ने कि एक दिन लंच टाइम में एक बड़ा सा पुलाव का डिश जो था वो डाइनिंग टेबल पे रखा था। अब जब नैरेटर अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ वहाँ आता है, पहुँचता है, तो देखता क्या है कि टोटो अपने मुंह में ठूस ठूस के चावल खा रहा है। अब दादी माँ जब उसको देखा तो वो चिल्लाई। उनके चिल्लाने पर टोटो ने एक प्लेट उनकी तरफ फेंका। अब नैरेटर की एक आंट आगे आई। जब आंट आगे आई, इसने क्या किया, टोटो ने एक गिलास पानी उनके चेहरे पर फेंक दिया। जब दादाजी वहां पहुंचे, उसने क्या किया, पुलाव का डिश उठाया और खिड़की से बाहर चला गया। और
इन नरेटर ने देखा कि उस दिन वो बाहर जो कटहल का पेड़ था वहीं वो बैठा रहा सारा दिन, और अपने हाथ में वो अब तक पुलाव का डिश लिया हुआ था। सारी दोपहर वो वहीं था, और सारी दोपहर वहीं था, और लगता था ऐसा कि उसने निश्चय कर लिया हो कि एक एक दाना आज ख़त्म करके ही छोड़ेगा पुलाव का। और दादी माँ की इंसल्ट करने के लिए, दादी माँ को चिढ़ाने के लिए, क्योंकि वो उन्होंने जब उसको पुलाव खाते देखा था तो चीखी थी उस पर, करता क्या है वो कि जब पुलाव का एक एक दाना ख़त्म हो गया तो उस ट्रे को ऊपर से नीचे, पेड़ पर से नीचे पटक देता है, और जब उसके टूटने की आवाज़ आती है, जब डिश टुकड़े टुकड़े हो जाता है, तो काफ़ी खुशी खुशी एकदम हंसने लगता है। अब नरेटर का अब जो टोटो है, ये तो इस ढंग के पेट को इंसान घर में तो रख नहीं सकता, और दादाजी को भी इस बात का एहसास हो चुका था। अब नरेटर ये कहता है कि हम लोग इतने भी अमीर नहीं थे कि पर डे प्लेट और तश्तरी तोड़ता रहे, वो कपड़े फाड़ता रहे, पर्दे फाड़ता रहे, और हम बर्दाश्त करते रहे। इसलिए दादाजी ने टोंगा ड्राइवर को दोबारा से ढूंढा और इस बंदर को उसे बेच दिया। कितने में? 3 रुपये में। तो ये थी हमारी कहानी कि टोटो जब तक नरेटर के घर पर रहा, उसने क्या क्या एक्सपीरियंस किया। उसका ये एडवेंचर था, एडवेंचरस टाइम जो उसने गुजारा दादाजी के और नरेटर के साथ, उसी पर ये कहानी है। और इसमें कुछ शब्द हैं जो हम लोगों ने न्यू सीखे, जो कि ये हैं, आपको यहाँ मिलेंगे न्यू वर्ड्स। फर्स्ट, मेड टू मच नॉइस, यानी हल्ला गुल्ला मचाना, जैसा कि दादी करती थी जब भी दादाजी नए जानवर लाते थे। दूसरा है क्लोजेट, जहाँ के नरेटर ने बंदर को बांध के रखा था। ये कबर्ड या वार्डरोब कह सकते हैं, इतना लंबा कि उसके अंदर कोई घुस सके। और टर्न स्टाइल का मतलब एक लोहे का दरवाज़ा होता है, कहीं कहीं पे आप लोगों ने देखा होगा, उसमें एट ए टाइम एक ही आदमी घुस सकता है, उसके बाद उसको घुमा देना पड़ता है, रिवॉल्विंग डोर होता है वो। और नेक्स्ट वर्ड है हाल्टर का मतलब रस्सी या स्ट्रैप, जो घोड़े या किसी दूसरे जानवर के चेहरे पर लगाई हुई होती है, ताकि उसको फिर पकड़ के, उससे जो लंबी रस्सी होती है उससे पकड़ के हम उसको आगे ले जा सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हॉन्चेस, इट मीन्स बैक पार्ट ऑफ अ बॉडी। स्पाइट, जो कि नरेटर ने यूज़ किया है वहाँ, बंदर उनके स्पाइट मतलब इंसल्ट करने के लिए। और नेक्स्ट होल्ड का मतलब ये यूज़ किया है, ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड होल्ड हिम, मतलब टुक द मंकी आउट ऑफ द केटल। jerked back to make a short sudden movement। तो ये न्यू वर्ड्स हैं कुछ इसमें जो हमने सीखे, और इसके साथ ही इस लेसन को एंड करते हैं हम। अगली कहानी में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे कनेक्टेड टू योर ऑनलाइन क्लासेस, एंड कीप ऑन वॉचिंग द वीडियोज़ which are delivered to you. Thank you. Have a nice day.